Okay. Good morning to all of you. So I think in our last classes we have discussed about some searching technique of linear searching and binary searching. Correct me if I'm wrong, or can you tell me that whether the linear search, binary search, this type of topic is discussed or not? Sir. I think linear search, binary search, this type of topic was discussed, and we may have also done the programming also, right? Okay, fine. So today we are going for the topic of sorting. Okay, so in your syllabus there is a topic sorting also. So now we are going to see the sorting techniques. Sorting technique means, suppose first of all, before starting for the sorting techniques, sorting, what does sorting mean? Sorting means that we have a list of numbers that are unorganized. Okay, so the numbers are not organized in an organized form. So suppose in an array, n number of arrays, suppose the number of array of 10 number of arrays are there, one array and 10 numbers we can put. So that 10 numbers are in an organized way. Okay, so we need to organize that. So for that we use different type of techniques or sorting techniques. So this type of problems where we need to sort or we need to maintain a organized structure. Maybe it can be ascending or maybe it can be descending, no issue, but it should be in a organized. If it is either ascending, so the value from the left to right, it will be some higher value, and if it is descending from the left to right, it will be a lower value. So we need to organize the array. So sorting techniques helps us to organize an unsorted array. So sorting techniques or helps us to organize an unsorted array, right? So in this sorting techniques, what we are trying to discuss today, the sorting techniques, there are 5 type of sorting techniques. Basically, we can talk about that is first one of is bubble sort. Second one, it can be an insertion sort, selection sort, merge sort, quick sort, heap sort. So these are the names, means the basic names of sorting. So these are the names I am talking about: merge sort, quick sort, heap sort, bubble sort, insertion sort, selection sort. These are the sorting techniques names. So the sortings are the way by which we can, or sorting is a process, we can say also, that by which we can organize a unsorted array, organize an unsorted array, right? So first of all, talking about the bubble sort, I'm going to start with the bubble sort. Okay, so first of all, we are going to discuss about the topic of bubble sort. Then what is the process, how this bubble sort is actually happening, we are going to discuss. Then we are going to follow it with the programming example. So the programming example, I am going to describe about the process,
what is bubble sort, how we are actually doing this. Okay, then you people have to implement the bubble sort, right, in the today's class in the programming, right? So bubble sort discussion and the programming will be followed by or done by you people. Okay, I will give you certain time, then I will also show you people. Okay, so let's get started with the bubble sort. Fine. Okay. Suppose in an array there are 5 numbers we can put, and the numbers present in the array, these are the numbers. Okay, 5 numbers are there: 14, 33, 27, 35, and 10. So in an array, 5 numbers have been present, and we can see clearly that this is my unsorted array because the values are unorganized, not following any particular order, neither ascending nor descending. So we need to keep it, or we need to make it a sorted way. We need to make this array sorted, right? So this is my array, given array, number of n numbers is given: 14, 33, 27, 35, and 10. Okay, Manish Kumar, kindly switch off your video. No need to open your video. Fine. So now what we are going to do, so we have write some array, that is 14, 33, 27, 35, 10. So how the process is followed? So this is my actual array. In the second stage, what we do in the bubble sort first, so first we take first 2 elements. What is the first element here? What is the first element present here? 14. 14. 14. Second element is 33. So first, what we will do here, we will take the first 2 elements. Bubble sort started with the comparison. So bubble sort, we basically say it is a comparison or comparing sorting. So how do we compare? We compare each and every element with respect to the next element. So first of all, we are going to take the first element, that is 14, and the second element, that is 33. So 14 and 33 will have a comparison with each other. So if we compare the 14 and 33, suppose we want to make this a ascending array. We want to make this in ascending order. Okay. So first of all, we are comparing this 14 and 33. So if we are comparing 14 and 33, so first of all, we need to check that whether 14 is greater than 33 or not. So we need to check that whether 43 is greater than 14 is greater than 33 or not. So we can see that 14 is not greater than 33. So in the first 2 numbers between 14 and 33, no need to sort it or no need to swapping. So in the first 2 cases, that is 14 and 33, we can see that the first 2 numbers are sorted already. So 14 and 33, no need of any type of changes. So iteration 1, we can say it as an iter 1. So iteration 1, in the case of iteration 1, what is actually happening? 14 and 33 getting compared, and after the comparison, we can see that no need to changes there because 14 is less than 33. So the position of 14 and 33 will remain keep intact. No need to change. So this is my first iteration. So in the iteration 1, we have compared 14 and 33. We have compared and 14 and 33, and we didn't find any problems there. Right. Now, going for the iteration 2. Going for the iteration 2. So 14 and 33, this comparison have done and no changes is there. So 14 will be remain in same places. 14, no need to change. Right. So we will keep the 14 as it is. Now we will compare the next 2 elements, that is 33 and 27. That is 33 and 27. So here a comparison will be checked that whether 33 is greater than 27 or not. So if I am getting whether the 33 is greater than 27 or not, so 33 is always greater than 27. So here a changes is needed because I am trying to sort the array in the ascending order. So 27 will be the left side, 33 will be on the right side, right? So 33 greater than 27, that is needs to change. So here
after the comparison, that is 13 greater than 27, after this particular comparison, a swapping will be there. The value of 33 and 27 will change its position, will swap its place. So it will be 14, 27 and 33. 14, 27 and 33, right? Then the rest of the element will be same. So in the iteration 2, we find out that 33 and 27, there is a problem. So we need to swap those particular value, and the value is getting swapped. And in the iteration 2, the table, the array will be 14, 27, 33, 35 and 10. Now, for the next part, iteration 3. So if I am trying to find out the iter 3, so what will happen? 14 will be in same places, 27 will be in same place, right? Now, the comparison will be done between 33 and 35. So we can say that 33 and 35, there is no particular problem, because 33 is less than 35, so it will remain same in its position, right? So 33 and 35 will be in same position, and 10 is also, so it will be iteration 3. So we can say that iter 2 and iteration 3 will be same. But why it is same? In the iteration 2, a comparison have checked between 33 and 27, a problem is found, and then it is actually replaced or swapped. The position is changed, and 27 and 33 we are getting as an output in the iteration 2. And in the iteration 3, while checking the condition for 33 and 35, we found no problem. So the iteration 2 and iteration 3 value will be the same in iteration 2 and iteration 3 case. Now, in the case of iteration 4, right? So what will happen? 14 will be same, 27 will be same, 33 will be same. Now there will be a comparison happening between 35 and 10. So we will check this particular condition whether 35 is greater than 10 or not. So we will found obviously that 35 is greater than 10. So of changes of position is needed. So what will happen here? That 14, 27, these particular changes will be there, and the value will be 10 to 35. This is my iteration 4. This is my iteration 4. So first of all, if I am going for the first that array, the 14, 33, 27, 35, 10, the array, right? What is the highest value? The highest value is 35. The highest value is 35. That is placed on the right side, because I am trying to sort the array in the ascending order. So in ascending order means the highest value will be in the right side, the lowest value in the left side. But in iteration 4, if I am seeing the iteration 4, what we can see, the highest value is in place. The 35 is the highest value in the array, and it is in place. It is in the right side, exact right side, where it needs to be. But but the previous values, that is 14, 27, 33 and 10, is still not sorted. So what happened here? It is just first one time total iteration, that the total array have iterated one time. The total array have traversed here. Total array after traversing one time fully. So here the array have traversed one time fully, and after traversing one time fully, we have found this particular result here. We have found the iteration 4 result, and we have found the highest value is exact in the right position, but still our array is not sorted. So again, we need to traverse the array one more time. So here, what is actually happening in the bubble sort, that for the first traversing means traversing the whole array fully. Traversing the whole array fully. Iteration means it is not traversing the whole array fully. It is iteration. In the case of bubble sort, the iteration means it is actually comparison between the two elements. It is, I am calling the iteration, but the total array is traversing after fully traversing the one time totally. Then I am found some result in the iteration 4, and still we can see the array is not sorted, whereas the highest value, the total highest value which will be, that is placed in the exact right position. Okay. Acha, I am talking in English, so whether all are understanding, or if anyone having any problem, then they can say. Till now, any doubt up to this particular part? Means any doubts? Then I am going to carry on.
ओके फाइन। तो अभी क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन हियर, नाउ वी आर गोइंग टू ट्रैवर्स द एरे। हम लोग फिर से एरे को वन मोर टाइम ट्रैवर्सिंग करेंगे। हम लोग के पास इटरेशन 4 तक का एक रिजल्ट है। नाउ आई एम गोइंग टू ट्रैवर्स द एरे फॉर द सेकेंड टाइम। so here iteration 5 will be happening, so iteration 5 will take place. So what will now, again it will starting from the first two element, again it will be starting from the first two element. तो अगर फर्स्ट टू एलिमेंट के बाद अगर हम लोग प्रोसेस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 14 एंड 27 का हम लोग कंपैरिजन करेंगे एंड 14 एंड 27 नो चेंजेस नीड टू बी देयर, so iteration 5 the value will be same, right? so in iteration 5 the value will be same, right? because हम लोग का कोई भी फर्स्ट टू कंपैरिजन के बाद 14 एंड 27 का कंपैरिजन होगा, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं होगा, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं होगा, राइट? तो हम लोग के पास कोई भी चेंजेस नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट इटरेशन पे, इटरेशन 6। इटरेशन 6 में क्या होगा, सेम, बिकॉज अभी कंपैरिजन कौन से वैल्यू का होगा, इटरेशन 5 में कंपैरिजन हुआ 14 एंड 27 का, इटरेशन 6 पे कौन सा कंपैरिजन होगा, 2733। 2733। सो अब अगर हम लोग इटरेशन 6 की बात करें तो इटरेशन 6 में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, बिकॉज 27 एंड 33 इज वेल एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड, so 14, 27 and 33, then 10 and 35. now coming for iteration 7, इटरेशन 7 में कौन से वैल्यू का अभी कंपैरिजन होगा, 33 10 33 एंड 10। क्या ये दोनों शॉर्टिंग पोजीशन पे है या चेंजेस चाहिए, चेंजेस चाहिए। तो अभी यहाँ पे मेरा शॉर्टिंग होगा 10 एंड 33 एंड 35 विल बी इन प्लेस। तो अभी फिर से हम लोग चलेंगे इटरेशन 8 पे। इटरेशन 8 पे क्या होगा, 33 एंड 35 का कंपैरिजन होगा एंड इट विल बी सेम। तो इटरेशन 8 पे क्या होगा, 14, 27, 10, 33 and 35. So iteration 8 means after having iteration 8, my second total array is traversing for the second time. मेरा array जो है वो second time fully traverse कर चुका है, लेकिन still the array is not sorted. So here bubble sort में क्या हो रहा है, हम लोग हर एक एलिमेंट को मीन्स 2 एलिमेंट को हम लोग हर एक पोजीशन पे चेकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अभी तक भी मेरा एरे शॉर्टेड नहीं हुआ है। तो इसके बाद क्या होगा, फिर से हम लोग का इटरेशन 9 आएगा जहाँ पे एक चेंजेस, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इटरेशन 10 पे, इटरेशन 9 पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि मेरा 14 और 27 जो है इसका कंपैरिजन होगा और इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। फिर जाएंगे हम लोग कहाँ, इटरेशन 10 पे। इटरेशन 10 पे एक चेंजेस आएगा क्योंकि इटरेशन 10 पे कंपैरिजन कौन से वैल्यू का होगा, इटरेशन 10 पे कंपैरिजन कौन से वैल्यू का होगा, 27 और 10। 27 and 10. So I am skipping the iteration 9, moving to iteration 10. यहाँ पे मेरा एक कंपैरिजन होगा between 27 and 10. 27 and 10 पे मेरा एक कंपैरिजन होगा and the value will be 14, 10, 27, 33 and 35. Okay. So next iteration 11. Iteration 11 पे क्या होगा? What will be happening in iteration 11? 10 and 14. 14 तो 10 and 14 कंपैरिजन विल बी देयर। 14 and 10 के बीच हम लोग एक कंपैरिजन करेंगे और 10 and 14 विल चेंज इट्स प्लेस। 10, 14, 27, 33 and 35, राइट? तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो एरे था, यहाँ पे हम लोग का जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे अभी एक शॉर्टेड वे पे आके रुका है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चीज मिस्टेक किया है, that is it is not in iteration 11, it is not iteration 11 because iteration 8 पे मेरा क्या था, 14, 27, 10, 33, 35। iteration 9 पे क्या होगा, 14, 27 का कंपैरिजन होगा तो वहां पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। iteration 10 पे क्या होगा, 27, 10 का जो कंपैरिजन है यहाँ पे हो गया। फिर तो हम लोग के iteration 11 पे किसका कंपैरिजन होगा, 27 and 33, क्योंकि मेरा एरे ट्रैवर्स नहीं हुआ है पूरा। इटरेशन 11 पे मेरा 10 और 14 का कंपैरिजन नहीं होगा। इटरेशन 11 पे मेरा 27, 33 का कंपैरिजन होगा। इटरेशन 12 पे मेरा 33 एंड 35 का कंपैरिजन होगा एंड दिस विल बी इन इटरेशन 13। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा
मिस्टेक हुआ, क्या हुआ कि हम लोग का इटरेशन प्रोसेस जो था हम लोग ब्रेक कर चुके थे, तो इटरेशन ब्रेक नहीं होता है, इटरेशन फुल्ली प्रोसेस होगा। हम लोग का शॉर्टेड हुआ कि नहीं ये तो हम लोग को पता तब चलेगा जब मेरा एरे फुल्ली ट्रैवर्स करेगा। तो ट्रैवर्सिंग 1 पे मेरा रिजल्ट कहाँ पे आया था, इटरेशन 4 पे। ट्रैवर्सिंग 2 पे मेरा फुल्ली रिजल्ट कहाँ पे आया था, इटरेशन 8 पे। तो ट्रैवर्सिंग 3 में मेरा फुल्ली रिजल्ट आएगा इटरेशन 12 पे। तो इटरेशन 13 पे जाके मेरा पूरा एरे टोटली शॉर्टेड होगा। कोई डाउट्स, एनी यहाँ पे कुछ डाउट्स है? इटरेशन 11 पे मेरा ये वाला नहीं आएगा, 14 and 10 comparison will be not in iteration 11. Iteration 11 will be compared between 27 and 33. तो कोई डाउट्स है यहाँ पे? तो अभी क्या हुआ बबल शॉट पे, तो हम लोग एक बार फिर से रिकैप करते हैं कि क्या हो रहा है बबल शॉट में। हम लोग हर एक एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, उसके नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, नेक्स्ट टू राइट एलिमेंट। तो बबल शॉट में हम लोग हर एक एरे एलिमेंट को कंपेयर करें उसके नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। वहां पे कंपैरिजन के टाइम क्या कंपेयर हो रहा है, वेदर इट इज ग्रेटर और वेदर इट इज लेसर। तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर पे करना चाहते हैं तो ग्रेटर, और डिसेंडिंग ऑर्डर करना चाहते हैं तो लेसर। तो असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करते हुए हम लोग चेक कर रहे हैं कि वेदर द वैल्यू इज ग्रेटर देन और नॉट। अगर ग्रेटर हुआ तो वैल्यू विल बी कंपेयर्ड, राइट, और वैल्यू विल बी स्वैप। अगर ग्रेटर हुआ या कोई पोजीशन चेंजेस नीडेड है तो वहां पे कंपैरिजन होने के बाद एक स्वैपिंग लॉजिक यूज किया जाएगा जहां पे हम लोग का दो वैल्यूज को स्वैप किया जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपैरिजन हो रहा है, सेकंड वन एक स्वैपिंग हो रहा है। जहाँ पे स्वैपिंग नीडेड है तो वहां पे स्वैपिंग होगा, जहाँ पे स्वैपिंग नीडेड नहीं है तो वहां पे स्वैपिंग नहीं होगा। तो दिस इज द लॉजिक ऑफ बबल शॉट। तो बबल शॉट में क्या हो रहा है, मैं फिर से मैं बता रहा हूँ, हम लोग दो एलिमेंट्स को, हम लोग का जो दो एलिमेंट्स है उसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, उस दो एलिमेंट्स को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने के बाद क्या हो रहा है, हम लोग कंपेयर करने के बाद अगर कुछ स्वैपिंग नीडेड है तो वहां पे हम लोग स्वैपिंग कर रहे हैं, अगर स्वैपिंग नीडेड नहीं है तो हम लोग स्वैपिंग नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इसका एल्गोरिदम के बारे में बात करें, ठीक है ना, क्या हम लोग एल्गोरिदम क्यों बात करें, हम लोग पहले दिन जब क्लासेस स्टार्ट किए थे तो मैंने बताया था कि हम लोग कोई भी लॉजिक का अगर प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसके पहले एक एल्गोरिदम सोच लेना जरूरी है। क्योंकि एल्गोरिदम के जरिए क्या होता है, एल्गोरिदम हम लोग को एक क्लियर आइडिया देता है कि हम लोग का प्रोग्रामिंग कैसे फॉलो करना है, कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग को कंडक्ट करेंगे, कैसे प्रोग्राम लिखेंगे। तो हम लोग को एल्गोरिदम का एक प्रोसेस पता होना चाहिए। तो एल्गोरिदम हम लोग इसका अगर इस बबल शॉट का अगर एल्गोरिदम के बारे में बात करें तो क्या हो सकता है इसका एल्गोरिदम। तो कोई मुझे बताइए कि इसका एल्गोरिदम क्या हो सकता है। मैंने दो चीज बताया कि यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है, तो उस दो चीज को ध्यान पे रखते हुए मेरा एल्गोरिदम यहाँ पे बनेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या है वो दो चीज, कौन सा जो चीज है इस यहाँ पे फोकस हो रहा है बबल शॉट पे। फर्स्ट वन इज कंपेयरिंग एंड स्वैपिंग। कंपेयरिंग एंड स्वैपिंग। तो हम लोग को फर्स्ट कंपेयर करना होगा, सेकेंड हम लोग का स्वैपिंग करना होगा। तो अगर हम लोग इसका एल्गोरिदम के बारे में बात करें तो देयर विल बी टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज इफ मे बी वॉट एवर द एरे नेम, एरे नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, मे बी ए, ओके। सो इफ ए आई greater than a I plus 1, so if ai is greater than I plus 1, अगर ai का वैल्यू I plus 1 से ज्यादा होता है तो क्या होगा, फिर हमारा शॉर्टिंग होगा। so this is a if condition and second one number 2 will be the swapping condition। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, swap ai and ai plus 1। तो ये दो चीज हम लोग को याद रखना होगा, ए आई एंड ए आई प्लस 1। तो ये हमारा दो मेन एल्गोरिथम का प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग को ध्यान पे रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर, कंपेयर कौन सा होगा, दोनों एरे एलिमेंट को हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेरिजन करने के बाद अगर हम लोग को फाइंड आउट होता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ स्वैपिंग नीडेड है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्वैप ए आई एंड ए आई प्लस 1। तो ये दोनों जाएगा इफ कंडीशन पे। अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, अगर मेरा इफ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ
तो ये वाला सेकेंड जो स्टेप है ये वाला प्रोसेस रन करेगा, और अगर मेरा फर्स्ट वाला इफ कंडीशन सही नहीं हुआ तो यहाँ पे ये प्रोसेस एंटर नहीं करेगा। तो सिंपल लॉजिक है बबल शॉट का, कंपेयर करेंगे दो एलिमेंट्स का, अगर चेंजेस नीडेड है, अगर स्वैपिंग नीडेड है तो स्वैपिंग करेंगे, अगर नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट इटरेशन के लिए प्रोसेस करेंगे। तो दिस इज द बेसिक लॉजिक ऑफ बबल शॉट, बेसिक लॉजिक ऑफ बबल शॉट। किसी को कुछ प्रॉब्लम है बबल शॉट के लॉजिक में, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है रिगार्डिंग द बबल शॉट, इट इज वेरी इजी, ठीक है। तो हम लोग अभी प्रोग्रामिंग पे प्रोसेस करेंगे। तो क्या होगा, आप लोग, मैंने अभी इतना जो बबल शॉट का डिस्कशन किया है, मैंने इतना जो बबल शॉट का अभी तक जो डिस्कशन हुआ, ये आप लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू ट्राई कीजिए। मैं आप लोग को कुछ 5 मिनट का टाइमिंग विंडो देता हूँ, आप लोग इस 5 मिनट में अपना जो भी अपना डेस्कटॉप, जो भी अपना लैपटॉप यूज करे, जो भी अपना मोबाइल फोन यूज करे, जहां पे भी आप लोग ये प्रोग्राम का जो लॉजिक है इस प्रोग्राम को ट्राई कीजिए, प्रोग्राम को अपने हिसाब से बनाइए। कोई अगर किसी के पास लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है तो आप लोग अपने कॉपी में भी बना सकते हैं, कॉपी में बना के आपका फोटो लेके मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं वही वाला चेक करूंगा। तो 5 मिनट का मैं आप लोग को टाइमिंग विंडो देता हूँ, 5 मिनट पे आप लोग ये बबल शॉट का जो प्रोग्रामिंग है इस प्रोग्रामिंग को फॉलो कीजिए, प्रोग्रामिंग को बनाइए कि कैसे हम लोग बबल शॉट का प्रोग्राम कर सकते हैं, राइट। अ वेरी इजी लॉजिक मैंने आप लोग को बताया कि क्या लॉजिक है, एक होगा कंपैरिजन, सेकंड होगा स्वैपिंग। इसको ध्यान पे रखते हुए बबल शॉट का प्रोग्रामिंग आप लोग को बनाना होगा। ओके, तो 5 मिनट का मैं आप लोग को टाइमिंग विंडो देता हूँ, आप लोग 5 मिनट पे बबल शॉट का जो टाइमिंग विंडो इसको आप लोग लिखिए, कोड अपने हिसाब से लिखिए, कहीं से कॉपी वगैरह मत कीजिए, क्योंकि कॉपी करने से आपका कोई फायदा नहीं है। अगर आप कहीं से कॉपी करेंगे तो इसका मतलब आपका दिमाग प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो बस कॉपी करने से आपको आगे जाके कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो आप लोग कोई भी बबल शॉट का कोड आपको बहुत सारे गूगल पे, बहुत सारे साइट्स पे मिल जाएंगे, लेकिन वहां से कॉपी करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको आपका जो थिंकिंग पावर है लॉजिकली कैसे हम लोग कर सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग अपने दिमाग से ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो फिर मैं आपको लॉजिक बताऊंगा क्या हो रहा है कि मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप लोग ट्राई कीजिए, इसलिए मैं आप लोग को पहले ट्राई करने के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो 5 मिनट के बाद मैं आप लोग से पूछूंगा, जिनका हो जाएगा वो आप लोग का अपना हैंड रेस कर दीजिएगा जरूर, ठीक है ना। तो जिनका हो जाएगा वो अपना हैंड रेस कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपका प्रोग्रामिंग हो चुका है, तो मैं आपका प्रोग्रामिंग देखूंगा। फाइन। एक चीज मैं आप लोग से यहाँ से पूछना चाहूंगा कि मैंने तो आपको एल्गोरिदम बता दिया कि क्या करना होगा, राइट। मैंने आप लोग को एल्गोरिदम बता दिया कि क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप कोई एक मुझे बताइए कि क्या करना होगा प्रोग्रामिंग लिखने के लिए, मुझे स्टेप बाय स्टेप कोई एक बताइए कि स्टेप 1 पे ये होगा, स्टेप 2 पे होगा, कौन सा स्टेप होगा, मुझे बस एक बार कोई बता दीजिए। कोई भी हैंड रेस कीजिए, पहले मैं उनसे ही पूछूंगा। जिनको जिनको स्टेप बाय स्टेप बोल पता है कि कैसे किया जा सकता है या आइडिया अभी तक मिल चुका है, तो आप लोग अपना हैंड रेस कीजिए, तो फिर मैं किसी एक से पूछूंगा कि क्या करना चाहिए हम लोग की इस प्रोग्रामिंग को स्टेप बाय स्टेप करने के लिए। बताइए नीरज। हेलो सर। हम्म, सर हम लोग पहले वो जो स्ट्रक्चर लिखते हैं तो लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एरे। स्ट्रक्चर मतलब सर वही इंक्लूड स्टूडियो कोनियो जो भी। इट इज नॉट स्ट्रक्चर, इट इज लाइब्रेरी। हाँ सर वही लाइब्रेरी। स्ट्रक्चर अलग चीज होता है, लाइब्रेरी अलग चीज है। हाँ ओके फाइन, सपोर्ट फिर से आगे बोलो। वही एरे डिक्लेयर करेंगे, ओके और फिर एक वेरिएबल स्टोर करने के लिए, एक स्वैपिंग के लिए, और 2 वेरिएबल रहेगा वही फॉर लूप चलाने के लिए। ओके। उसके बाद एक फॉर लूप चलाएंगे, और n-1 तक चलाएंगे उसको। फिर ओके i++ कर देंगे, एक और लूप चलाएंगे जिसमें j=i+1 और j जो रहेगा वो <n रहेगा। उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे, वही जो आप बताए थे, ai > aj। आप वहां पर n+1 किए थे, और हम क्योंकि दो लूप ले रहे हैं तो हम यहाँ j करेंगे। ओके
और उसके बाद वही स्वाइपिंग कर देंगे। ओके ओके, तो यहाँ पे एक चीज, प्रोसेस आपका सही है। तो यहाँ पे एक छोटा सा इनपुट मैं बताना चाहूंगा कि आप जो एरे लेंगे, एरे का वैल्यू यूजर से लेना होगा, कि आप लोग अपने से कोई एरे वैल्यू डिफाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को एक एरे यूजर से लेना होगा, तो मीन्स डायनामिकली हम लोग यूजर से रन टाइम पे वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो ये प्रोसेस है। तो आप लोग जल्दी से, नीरज ने हम लोग को बता दिया कि क्या प्रोसेस होगा, क्या इनिशियल स्टेजेस है। तो आप लोग इसको ध्यान पे रखते हुए जल्दी से ये प्रॉब्लम का कोडिंग कीजिए। मैं 5 मिनट बाद हर एक का चेक करते रहूंगा। जितना भी आप लोग जितना बनाए, किसी ने कुछ बनाया है, किसी का पूरा हो गया, जितना तक हुआ है मैं उनका उतना तक ही देखूंगा। मैं कोई भी रैंडम पर्सन का नेम लूंगा और उसको स्क्रीन शेयर करके, या जो भी है अपना फोटो कॉपी में लिख रहे तो जो भी है उसको दिखाना होगा मुझे, ठीक है ना। 5 मिनट का मैं टाइमिंग विंडो दे रहा हूँ। लॉजिक आप लोग के सामने, में कोई स्क्रीन शेयर ऑफ नहीं कर रहा हूँ, लॉजिक आप लोग के सामने ही रखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या है सिनेरियो। तो आप लोग उस हिसाब से अपना बनाइए। जिसका हो जाएगा वो अपना हैंड रेस जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले। जिनका हो जाएगा अपना हैंड जरूर रेस कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हो गया है, ठीक है ना। जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आगे का डिस्कशन भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अभी फिलहाल 7 मिनट है हम लोग के पास टाइम। तो हम लोग देखते हैं, 3-4 मिनट बाद मैं हर एक से पूछूंगा कि कैसे क्या हो रहा है, कितना तक हुआ है। तो एक एरे बनाइए, एज नीरज ने बताया कि क्या करना होगा हम लोग को। पहले पहले हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन डिफाइन करेंगे, फिर एक एरे बनाएंगे, कुछ वेरिएबल्स लेंगे वहाँ पे, एज पर टू अप टू यू। फिर एरे और वेरिएबल्स लेने के बाद हम लोग एक फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप में हम लोग, फॉर लूप के थ्रू हम लोग एरे को ट्रैवर्स करेंगे। फिर कंपैरिजन करेंगे एवरी एलिमेंट का। एलिमेंट कंपैरिजन करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि वेदर, अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ नीडेड है तो हम लोग उसको स्वैपिंग करेंगे, अगर नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट वाला इटरेशन के लिए फॉलो करेंगे और नेक्स्ट वाला प्रोसेस कंटिन्यू होगा टिल द टाइम एरे इज शॉर्टेड। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो बबल शॉर्ट एल्गोरिदम, या और भी हम लोग के पास एल्गोरिदम है, हम लोग आगे भी नेक्स्ट क्लासेस में बाकी सारे एल्गोरिदम्स के बारे में भी बात करेंगे, शॉर्टिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। तो ये सारे जो शॉर्टिंग टेक्निक्स है, हम लोग एक अनशॉर्टेड एरे को शॉर्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो बहुत सारे एरे हैं, तो बहुत सारे एक्चुअली शॉर्टिंग टेक्निक्स है हम लोग के पास। तो हम लोग कौन से शॉर्टिंग टेक्निक्स कब यूज करेंगे, ये एक्चुअली डिपेंड करता है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करता है, या सिनेरियोज है कि एवरेज और बेस्ट केस और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना नंबर्स होगा, आइटम्स मीन्स एलिमेंट्स जितना होगा एरे पे, उसके हिसाब से हम लोग का यहाँ पे डिपेंड होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी का टाइम कितना होगा।
ओके तो ये जो हम लोग बबल शॉट के बारे में बात कर रहे थे अभी तक, तो बबल शॉट जो है एक स्मॉल नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स के लिए इट इज वेरी यूजफुल, जहाँ पे एरे एलिमेंट्स बहुत कम है, 5 6 7 8 10 या 20 मान के चलिए। तो ये स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल ग्रुप ऑफ एलिमेंट के लिए बबल शॉट इज अ गुड टेक्निक। स्मॉल साइज या स्मॉल एलिमेंट्स के लिए बबल शॉट इज अ वेरी गुड टेक्निक, but it is not very good, but bubble shot is not good actually in large data set. When the numbers are very high and numbers are given, then for the large number of data sets the bubble shot is not suitable, because the time complexity or the best or worst case complexity will be much higher. Okay, so that's why we will use another technique. So first of all we need to learn all the techniques, and then we need to identify that which techniques we are going to use for the sorting purpose. Okay, for how many numbers are there, then depending on that, then we are going to sort the array. So bubble sort basics we have discussed. Now it is programming time. So I think you are doing the programming from your end, and then I'm going to start to check. So have anyone done it till now? Anyone? Parmeshwar Yadav. Parmeshwar Yadav. Parmeshwar Yadav, I think you are not present. So joining the class only, it is not actually needed. Only joining the class, it is not actually Hello? required here. Parmeshwar Yadav, Hello? तो कितना तक हुआ है? सर और 1 मिनट बस। Okay, continue. Yes. And also, okay, fine. Continue with the program. The screenshot of that. Okay. तो किसी का अगर अभी तक पूरा हो चुका है, किसी ने अगर पूरा रन किया है कोई प्रोग्रामिंग, तो किसी ने लिखा है तो बताइए। एनीवन? अगर किसी को कुछ डाउट्स है, किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है तो बता सकते हैं, किसी को कुछ हेल्प चाहिए तो। एक काम करते हैं, ठीक है ना, टाइम खत्म होने वाला है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 मिनट से अभी कुछ मिनट में कुछ ही सेकेंड्स बचे हैं क्लास खत्म होने के लिए। तो ये आप लोग का एक होम असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये बबल शॉट का जो प्रोग्रामिंग है आप लोग आज करके रखिएगा। कल हम लोग के क्लास में ये बबल शॉट का प्रोग्रामिंग मैं आप लोग से देखूंगा, तो आप लोग इसको रन जी सर। करके होम पे ट्राई कीजिए। मैं कल आप लोग से हर एक से पूछ के देखूंगा कि आप लोग ने कितना तक बनाया, क्या किया है। तो सारे आप लोग ये प्रोग्रामिंग को होम टास्क एक होम असाइनमेंट समझे, और ये मैं कल हर एक से चेक करूंगा। मैंने हर एक से पहले पूछूंगा कि आप अपना प्रोग्रामिंग जो बबल शॉट वाला है वो आप दिखाइए कल मुझे। ओके, तो ये आप लोग का होम असाइनमेंट है कल के लिए। मैं आज तक का आप लोग के पास पूरा समय है, खत्म होने के बाद आप लोग इसको अपने घर पे ट्राई कीजिए और देखिए कि क्या हो रहा है। मैं कल हर एक से चेक करूंगा, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है तो कल मुझे बताइए कि सर ये डाउट है, आप क्लियर कर दीजिए। फाइन? जी सर। ओके, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है तो आज तो डिस्कशन नहीं हो सकता है। तो हम लोग कल क्लास में ये बबल शॉट के प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि